Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good. And children, as you all are aware that we have started our unit 1, which is the natural world, and we have done about different animals, birds, their home, and animal sounds, and lot many topics in it. So yesterday children, we have started our page number 52, that is different landforms. And yesterday we have done few of the landforms also. And what is a landform? Landform is a particular kind of a area or a region. मतलब कैसा यहाँ पे whatever will be the landform, मतलब यहाँ plain है और hilly area is there or valley is there or forest is there, so that will describe the landform. So what are the different landform? As I told you yesterday regarding Rajasthan, regarding that desert area. So the first landform which we have done, that is your desert area, and along with that I've told you many important points of that desert also. And we have done that camel is called ship of desert. Why camel is called ship of desert? Because camel has long leg and padded feet which help that camel to travel easily in desert area. So that is your landform. Now what is given on page number 52 in your book, that read out about the clues and after that find out the answer. So here in the clue it is given what kind of a weather is there, what kind of a area is there, what kind of a placement of that landform is there. So let us revise the previous one and after that we will move to the next landform. So yesterday the first landform which we have done, that is you are at a place which is very hot and dry. You are at a place which is very hot and dry and you can hardly see any plants around. You can hardly see any plants around. Now you are in a, yes. So yesterday we have done about it, that is desert. So I'll write it once. And what we have done about desert, that also we have done. First of all, what we have done about desert, that animal which is often find it out in desert, that is camel. Camel is called ship of desert because camel has long leg, padded feet with which that camel can easily walk in sand. What kind of a weather is there? That is given in your book, that is hot and dry. Then next thing, what kind of a plant you will find it out in desert? That is the most common plant which you will find it out in desert is cactus. Cactus, why we are finding out cactus? Because cactus has thorn, means that कांटा होता है, that कांटा, that spines help to reduce water reduction. Fine. So transpiration से जो पानी आ जाता है ना, what is transpiration? Leaves respire. Leaves जब आपका photosynthesis का process करती हैं, then they release water from their bodies. तो जो कैक्टस होता है इसका फ्लैशी लीव होता है, मोटी मोटी होते हैं ना, मोटे मोटे होते हैं, उसके ऊपर कांटे से होते हैं. सो दीज स्पाइंस हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस. अब वो क्या करता है, वो जो कांटे होते हैं, वो कांटे ही जो होते हैं वो पानी को बाहर जाने नहीं देते हैं. वो कांटे, वो पानी के जो पोर्स होते हैं, जो एक्सपेल करते हैं पानी, जो बाहर निकालते हैं पानी, वो उसको बंद करके रखते हैं. तो अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन प्लांट विच वी विल फाइंड इट आउट इन डेजर्ट इज कैक्टस. फाइन. और कैसा वेदर होता है? हॉट वेदर होता है और ड्राई वेदर होता है, और यू हार्डली सी एनी अदर प्लांट ओवर देयर. फाइन. तो इसका आंसर हो गया डेजर्ट. यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ डेजर्ट एंड द फीचर ऑल्सो. विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल. और कैमल इज कॉल्ड
by what other name? That is ship of desert. Fine. Now come to our second landform. You are standing on a flat land which is between two hills. You are standing on a flat land which is between two hills, means यहाँ पे भी एक पहाड़ है और इधर भी एक पहाड़ है और बीच में फ्लैट लैंड है. इट मीन्स यू आर स्टैंडिंग इन अ वैली. ऊपर से भी ऐसे ढलान नीचे आ गई, इधर से भी ढलान नीचे आ गई. सो यहाँ पे जो एरिया है दैट विल फॉर्म वैली. वैली के अंदर स्मॉल विलेजेस, टाउन्स वर देयर और वहाँ पे द लाइफ इज वेरी चैलेंजेस. लाइफ का बहुत डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट लाइफ इज देयर. एवरीबडी वोंट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर. क्यों? इतने हिल पे जाके वहाँ पे फिर सारा कुछ प्लान को नीचे आना पड़ेगा. यू हैव टू टेक ऑल दोज थिंग्स, जो भी आपकी डेली एसेंशियल नीड की चीज़ें हैं आपको ऊपर लेके जानी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू सर्वाइव. अच्छा, वेदर कैसा होता है? वेदर वहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा होता है, वेदर होता है. एंड दे आर गेटिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है वैली के अंदर. वैली में बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. सो दे आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ दैट वुड. लकड़ियाँ, पेड़ पौधे उनको आराम से मिल जाते हैं. अब जो उनके एनिमल्स होते हैं, एक्चुअली जो हिल स्टेशन में या माउंटेन पे जो भी रहते हैं, दे आर हैविंग याक. और याक रहता है उनके पास, या क्या रहता है उनके पास, गोट, शीप, ये सब रहते हैं. तो उनके लिए फूड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर. तो वो वैली में उनको एकदम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिल जाता है. वो आराम से खा पी सकते हैं वहाँ पे एंड दे कैन सर्वाइव. अब वैली में ह्यूमन लाइफ, जो हम लोग की लाइफ है, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि हमें जो भी चीज़ लेके जाना है वो नीचे से लेके जाना है. अब वैली के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में कोई भी चीज़ वहाँ पे क्रॉप हम ग्रो नहीं कर सकते. ना हम वहाँ राइस उगा सकते हैं, ना हम वहाँ पे वीट उगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेदर वैसा नहीं है ना. तो वहाँ पे हम दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं. लाइक एप्पल वी आर गेटिंग इन वैलीज मोर. एप्पल मिल सकता है, कैशू नट्स वी आर गेटिंग, और डिफरेंट अदर ड्राई फ्रूट्स वी आर गेटिंग ओवर देयर. बट हमें वो जो प्रॉपर हमारा फूड की जो रिक्वायरमेंट है ना, दैट वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम देयर. वहाँ पे वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है. हमें कोई भी ऐसा फ्रूट वगैरह तो मिल जाएगा, पर हमें वीट, राइस, जो हमारी डेली नीड की चीज़ है, दैट वी आर नॉट गेटिंग इन अ सफिशिएंट अमाउंट. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. सो नाउ नंबर 2 इज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट लैंड. अब आपसे वी कैन आस्क क्वेश्चन कि आप किसी फ्लैट लैंड पे खड़े हो विच इज बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स. दो पहाड़ के बीच में कोई एक फ्लैट लैंड है, आप उसको क्या बोलोगे? देन योर आंसर विल बी नंबर 2 विच इज वैली. नंबर 2 विच इज वैली. सी, आई एम टेलिंग यू ऑल द फीचर्स एंड फैक्ट्स अबाउट दीज प्लेसेस. हमने डेजर्ट किया, डेजर्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और फैक्ट्स थे हमने वो कर लिए. सिमिलरली हमने वैली किया, वैली के बारे में भी जो भी आपके डिफरेंट फीचर्स, फैक्ट्स हैं वो भी हमने देखे. नाउ कम टू आवर थर्ड लैंडफॉर्म. यू आर एट अ प्लेस वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स. आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर. अब बहुत सारे पेड़ कहाँ होते हैं? अच्छा ठीक है, अभी देखो, you often heard in the stories में once there was a jungle, once there was a forest. तो वो फॉरेस्ट को, जंगल को हम इतना स्पेसिफिकली क्यों बताते हैं? वो एक अलग से एक लैंडफॉर्म है. क्यों? क्योंकि लैंडफॉर्म मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर अर्थ, हमारी धरती का कोई ऐसा पार्ट विच डिस्क्राइब इट्स ओन एनवायरमेंट. उसका अपना जो एनवायरमेंट है और वहाँ पे कैसी हमें चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट रहता है, दैट विल सिंप्लीफाइज द लैंडफॉर्म. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक जगह बताया है कि जहाँ पे आपको यू आर गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, बर्ड्स मिल रहे हैं. भाई वो वाली लैंडफॉर्म क्या है?
सो दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म इज फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट को अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमें बहुत तरह का प्लांट मिल जाता है, बहुत तरह के ट्रीज मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं और बर्ड्स मिलते हैं. तो बर्ड्स मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स आर अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. ठीक है. अभी एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स कैसे है, बिकॉज दीज एनिमल्स हेल्प्स अस. कैसे हेल्प करते हैं, अगर ये एनिमल लाइक जो हमने हार्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में पढ़ा था फूड हैबिट्स में. तो हार्बीवोरस एनिमल्स जो है वो नहीं होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे हर जगह पे पेड़ 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 उगता जाएगा क्योंकि कोई उसको खाने वाला नहीं होगा. सेकेंडली, अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होगा तो बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि कोई हर्बीवोरस एनिमल को तो खाने वाला है नहीं. वो तो जब मर जाएंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे तभी होंगे. तो क्या होगा कि प्लांट्स और ट्रीज कम पड़ जाएंगे. इतने सारे हर्बीवोरस एनिमल है. इसको समझो, ये दीज ऑल थिंग्स, आपका जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं कि अब बहुत सारे हर्बीवोरस हो जाएंगे तो प्लांट खत्म हो जाएंगे. इसीलिए हर्बीवोरस को कम करने के लिए हमारे पास कार्निवोरस एनिमल है. वो क्या होता है, वो हर्बीवोरस को खा लेते हैं ताकि द अमाउंट ऑफ हर्बीवोरस एनिमल विल बी मेंटेन. इतने ही हो कि जितने के लिए पेड़ पौधे हमारे पास हो जाए. अब नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट. हमारे थर्ड लैंड फॉर्म मैंने बता दिया आपको. यू आर एट अ प्लेस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, एनिमल एंड बर्ड्स. सो यू आर इन अ फॉरेस्ट. तो आप आ गए हैं अब एक फॉरेस्ट में. सो व्हाट इज द बेसिक थिंग और व्हाट आर द यूजफुल थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से आपको क्या क्या ऐसी चीजें आपको मिल जाती है विच इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल और विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम देयर. फिर हमें बहुत मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो वी आर गेटिंग. मेडिसिनल प्लांट मतलब जिनकी दवाइयाँ भी बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ एंड सम काइंड ऑफ ए लाइक यस्टरडे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी उससे बनते हैं. थर्ड, वी आर गेटिंग रबर फ्रॉम देयर. रबर मीन्स जो रबर आप ये इरेजर और ये सब, और इनफैक्ट प्रिंटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाम ऑयल ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम दोज ट्रीज ओनली. सो ये सारी चीजें, आपका फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्लांट्स. वो डिफरेंट काइंड ऑफ ए ट्रीज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट, वहां से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से. ठीक है बेटा. तो अभी we have completed our third landform which is forest. Now we'll come to our fourth landform. अभी fourth landform is a little bit different from that previous one. अभी क्या है, fourth landform is you are, so let's see fourth one. You are standing on a raised flat land. Raised flat land. अभी इसको समझेंगे with the picture कि यहाँ पे आपका कोई देयर इज अ पार्ट ऑफ योर लैंड. फाइन, देयर इज अ पार्ट ऑफ योर लैंड और ये लैंड के बगल में क्या है, सम रेज्ड पार्ट इज ऑल्सो देयर. रेज्ड पार्ट इज ऑल्सो, आपका ये कोई भी अर्थ आपका है, जमीन है, एंड सम पार्ट ऑफ इट इज रेज्ड. जैसे ये पार्ट हो गया, ये इसमें रेज्ड हो गया, ये बढ़ गया. बाकी आपका ये लैंड ऐसे ही है. कुछ कुछ पार्ट इसमें से रेज्ड. रेज्ड मतलब ऊपर की तरफ उठ गए. अब ये कैसे उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ कैसे उठ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, ये मान लो ये लैंड है, ये लैंड है. अब ये लैंड पे क्या हुआ, कभी भी बारिश आई या बाढ़ आई, या बाढ़ समझते हैं, फ्लड आया, तो वो फ्लड में क्या होगा कि फ्लड अपने साथ मिट्टी या दूसरी चीजें ऐसे बहा करके ले आएगा. बहाना मतलब अपने साथ इरोड करके लेके आता है. सी आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे ये जो उठे हुए पोर्शंस है दैट विल बी फॉर्म्ड. और समटाइम व्हाट इज देयर कि रिवर का पानी बहुत ओवरफ्लो हो गया तो उसके रिवर के अंदर का जितना भी सैंड और सिल्ट है दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन वन लैंड. अब ऐसे करके यहाँ पे सैंड की जो मिट्टी है वो यहाँ पे जमना शुरू हो गई. अब यहाँ जमते जमते क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन था
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये रेज्ड फ्लैट लैंड हो गया, ठीक है। रेज्ड मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ फ्लैट लैंड, फ्लैट पोर्शन, रेज्ड फ्लैट पोर्शन और फ्लैट लैंड इज देयर। अब ये है लैंड का ही पार्ट, बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है, ड्यू टू फ्लड इन रिवर। और फिर ऐसा हुआ कि रिवर ही अपने आप, कभी ऐसे तो मानसून सीजन में जैसे अभी है, बहुत बारिश हो रही है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि जो आपका जैसे रिवर है, हमारी यहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी क्या होता है कि गंगा नदी का पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। अभी यहाँ पे स्टेज, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, घाट बने हुए हैं, तो वो जो मिट्टी ऊपर आएगी वो कहीं डिपॉजिट नहीं हो सकती। बट यही अगर हम फ्लैट एरिया में या पीछे कहीं हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ वो रिवर के आसपास जो मिट्टी वाला एरिया है, तो वहाँ पे आप देखते हो रिवर में के आसपास ऐसा होता है, ऊपर की तरफ ऐसे ढलान सी बन जाती है, वो ढलान से हम नीचे उतरते हैं और उसके बाद फिर रिवर इज देयर। तो वो ढलान कैसी होती है, जब भी रिवर, आप मानसून सीजन में बारिश होती है और वो धीरे धीरे रिवर बढ़ती जाती है, तो वो बढ़ती है तो वो क्या करती है, जो रिवर के अंदर जो एक्स्ट्रा सिल्ट मतलब वो जो उसकी मिट्टी और जो भी वो अपने साथ लेके आती है, जब वो एक्सटेंड होती है, जब वो बढ़ती है, तो वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चली जाती है, और जब वापस कम हो जाती है रिवर, तो वो मिट्टी तो वहीं रह जाती है, और वो धीरे धीरे उसका जो लेवल होता है पानी का वो कम आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये रेज्ड फ्लैट लैंड जो होते हैं ये ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। सेकेंडली, मान लो कोई आंधी तूफान आ गया, तूफान जैसे होते हैं मिट्टी का जो आपका एक तूफान सा आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी, धूल मिट्टी की आंधी जो उड़ती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और दूसरी चीजें उड़ा करके लेके जाती है, और जहाँ पे वो आंधी खत्म हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, वो धूल मिट्टी वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन, बार बार ये प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। तो ये प्रोसेस होता रहता है। तो व्हाट विल बी हैपन दैट ये दीज फ्लैट लैंड विल बी फॉर्म्ड। अब ये फ्लैट लैंड का हमने फिर नाम रख दिया, बिकॉज दिस रेज्ड फ्लैट लैंड इज पर्टिकुलरली अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इंडिया। बहुत सारी जगह मैं आपको बताऊंगी, महाराष्ट्र में मेनली, महाराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस हैं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ और एमपी में भी आपको बहुत सारे ऐसे प्लेट्यू वाले प्लेसेस मिल जाएंगे। नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग, नाउ द क्वेश्चन इज, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड फ्लैट, you are on a plateau, where you are plateau. So we will write this fourth one, plateau. Fourth is plateau. Now what is the importance of this area, plateau? प्लेट्यू में लोग क्यों रहते हैं, जो ये रेज्ड फ्लैट लैंड हो जाते हैं, फिर यहाँ क्यों रहने लग जाते हैं लोग? व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस? अब इसका यूजफुलनेस समझेंगे, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दीज रेज्ड फ्लैट लैंड। अब इसकी यूटिलिटी ये है बेटा कि जहाँ पे भी रिवर बार बार ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, तो उधर पे क्या होता है कि अब रिवर का पानी हर मॉनसून सीजन में जब भी बारिश होएगी, इट विल रेज, रिवर का पानी जो होगा, रिवर का वाटर लेवल जो होगा, दैट विल बी रेज्ड इन एवरी मॉनसून सीजन। तो वो प्लेट्यू पे लोग घर बना लेते हैं, सो दैट अगर वाटर लेवल इंक्रीज भी होगा, सो दैट वाटर विल नॉट रीच ओवर देयर, इनके घरों तक पानी नहीं आएगा, तो यानी बाढ़ में इनके घर को कोई नुकसान नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ प्लेट्यू, दैट पीपल मेक देयर हाउसेज ऑन प्लेट्यू so that they can be safer from flood मतलब बाढ़ से बचने के लिए they are making plateau, they are making home on their plateau. अब what is the other importance of plateau? Actually जो soil होती है और जो यहाँ पे डिफरेंट जो होता है वो स्टोन वगैरह भी आपको प्लेट्यू लैंड में काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह यू कैन फाइंड इट आउट. So these are the usefulness of plateau.
Now we'll come to our fifth one. You are on a land. You are on a land which is higher than. Fifth one is you are on a land which is higher than the nearby areas. Which is higher than the nearby. Higher means, now this is raised means with erosion or something. ये आपका बना हुआ है. Now the fifth one is you are on a land which is higher than the nearby area. Now higher than the nearby area means here the area is there and this portion is your raised part. This portion is your raised part or higher than the nearby area has a slope. Slope क्या होती है ये? This is called slope. Slope means ढलान. Slope means ढलान. अभी आप होते हैं ना, आप झूला जो झूलते हैं, हाँ, उसमें स्लाइडर वाले झूले में होता है, वो क्या होता है? स्लाइडर वाले झूले में क्या होता है? दैट इज स्लोप ओनली. स्लाइडर वाला झूला जो होता है दैट इज योर स्लोप ओनली. तो ये क्या हो गया आपका स्लोप. सो हैज अ स्लोप एंड यू आर ऑन अ, वेयर यू आर, इसको क्या बोलते हो आप? ड्राइंग में हमेशा बनाते हो ना, मैंने यहाँ पे ये बना दिया, क्या बोलते हैं उसको? यस, यू विल कॉल इट हिल और माउंटेन. तो अभी नंबर 5 क्या हो गया? हिल. नंबर 5 इज हिल. फाइन. अभी इसका फीचर्स क्या हो गए कि जो आपके आसपास का वॉट एवर लैंड यू आर हैविंग, ये वाला जो एरिया है दैट विल बी हायर. मतलब ये क्या होगा? बहुत ऊंचा होगा. जैसे हमारी जो फेमस हिल टॉप आर देयर, शिमला में अगर आप जाएंगे घूमने के लिए, यू कैन फाइंड इट आउट मैनी हिल टॉप. ऊपर ऐसे इतना ऐसे पहाड़ आपको बहुत दिखेंगे. सो दैट पहाड़ इज ओनली हिल. दे हैव स्लोप ऑन इट. स्लोप पे आप क्या करते हैं? समटाइम माउंटेनियर्स जो होते हैं वो माउंटेन के ऊपर चढ़ते भी हैं. आपने देखा है कि K2 के ऊपर भी बहुत सारे माउंटेनियर्स दे हैव, उनके ऊपर चढ़ करके एंड देन दे रीच एट द टॉप, है ना. तो दैट इज देयर. अभी इसका फर्स्ट फीचर ये है कि ये अपने आसपास के लैंड से इट इज़ क्वाइट हायर, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है अपने आसपास के एरिया से, एंड हैज़ अ स्लोप. और वहाँ पे ऐसे ढलान भी होती है, ढलान से नीचे आने का भी होता है. नाउ यू आर ऑन अ हिल, मतलब हम कहाँ पे हैं? हम एक हिल पे हैं. अब हिल पे व्हाट आर द चैलेंजेस ओवर देयर? लाइफ इज़ वेरी टफ. जैसे वैली में रहना बहुत टफ है, वैसे हाई जो हिल है वहाँ पे भी रहना बहुत ही मुश्किल है. अब वहाँ क्या होता है? एल्टीट्यूड पे वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हम हिल पे जाते हैं तब क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? वो कम होने लगता है. अब आप बोलोगे कि नहीं वहाँ पे भी तो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है, वाई द ऑक्सीजन लेवल इज कम? बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अदर प्लांट्स एंड ऑल. अब क्या होता है? वहाँ पे आइस होता है, बर्फ होता है, ठीक है, विच मेक्स द टेम्परेचर डाउन. जब टेम्परेचर डाउन होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाए. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि आपका जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ पे गर्मी हो जाती, मतलब ऐसा होता है, मतलब प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा मतलब क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं दे आर हार्डली परफॉर्मिंग देयर फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस बहुत कम परफॉर्म कर पाते क्योंकि धूप कम होती है, धूप नहीं है, सनलाइट नहीं, तो हाउ वी दे कैन परफॉर्म. और ज़मीन पे क्या है? ज़मीन पे तो सारा स्नो ही स्नो है, तो स्नो से वो कैसे, हाउ दे कैन सक मिनरल्स और हाउ दे कैन सक वाटर. और सनलाइट नहीं है तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लाइफ क्या हो जाती है वहाँ हिली एरिया में? टफ. अभी विच आर द मोस्ट कॉमन एनिमल? अब हिल के बारे में हम जानेंगे, व्हाट आर हिल, और वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ ए फूड दे ईट. अब कैसा खाना खाते हैं वो लोग वहाँ पे, ठीक है. अब खाना समझने के लिए व्हाट काइंड ऑफ ए फूड दे ईट, आपको ये समझना है दैट दे हैव कोल्ड वेदर. तो कोल्ड वेदर में अब आप सोचो घर में अपने कि जब विंटर्स आते हैं तो मम्मी क्या बोलती है कि विंटर्स में आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए,
मम्मी लड्डू भी बनाती है, वो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू भी बनाती है ना। तो ड्राई फ्रूट क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट दे प्रोवाइड वार्मथ टू आवर बॉडी। वार्मथ मतलब वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। सिमिलरली द पर्सन दोज हु आर लिविंग इन हिली एरिया दे आर ऑल्सो ईटिंग ड्राई फ्रूट्स, दे आर ईटिंग ड्राई फ्रूट्स। ये तो दीज आर द फूड हैबिट्स। ड्राई फ्रूट्स वो बहुत खाते हैं। सेकेंडली दे आर रिच इन मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो because they are rearing yak, sheep and goat also. Now the famous thing which are getting from our hilly area, that is your dry fruit and our woolen clothes. Pashmina cloth, if you have heard about it, pashmina cloth हमें कहाँ से मिलता है? That we are getting from that hilly area only. कश्मीर का जो एरिया है जहाँ पे वो sheep और sheeps को rear करते हैं, मतलब पालते हैं। then we are getting wool from those sheeps, और वो sheep की wool से we are making pashmina cloth. See, all these things are not necessary to remember, but ऐसी जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम we are doing any topic, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, so that it will increase your general knowledge. और along with this in our online class we will take some questions also which is related to your current affair, like हमारे अभी प्रेजेंट में कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हु इज़ आर CM, हु इज़ आर गवर्नर ऑफ यूपी और उत्तर प्रदेश, दैट वी आर गोइंग टू सी। और अभी बहुत दैट वायरस इज बिकम पेंडेमिक इन आवर कंट्री, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर ऑनलाइन क्लास. इफ यू विल वॉच माई वीडियो in earlier, then that will be easier for you ki what we are going to do it. Now with this 5 landform we have completed different landforms. Now we will come to tidbits. Now what are tidbits? Nearly 3/4 of the earth. Now 3/4 of the earth. Now what do you understand 3/4 of the earth? Means जो हमारी धरती है पूरी अर्थ का 3/4 मीन्स 75% ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। 3/4 मीन्स अभी आप छोटे हो तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड 3/4 मीन्स 75%। अब 75% इसको परसेंट में याद रखो, 75% पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब ये इतना सारा पानी है, देन व्हाई वी वर सेइंग कि इतना सारा पानी है, तभी भी हम क्या बोलते हैं कि हमारी धरती पे पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वी डू नॉट वेस्ट वाटर। अब पूरी धरती पे 100% में से 75%, ठीक है, यानी 100 मार्क्स में से किसी के 75 आ जाए, 100 मार्क्स में से किसी के 75 आ जाए, तो इतने तो वाटर ही है। देन वाई वी वर सेइंग कि हमारी अर्थ पे पानी ख़त्म हो जाएगा, देन वाई वी वर सेइंग दिस कि दैट टू सेव वाटर। Now this water is found. The answer is in next line. अब आपके tidbits के next line में इसका आंसर है। Now this water is found in different types of water bodies. अब ये जो पानी है which is your 75% of water is found in different water bodies such as oceans, seas, river and lakes. अब ये 75% water is divided into oceans, seas, rivers and lakes. These are the few places or the few sources of water are there. अब ocean में समुद्र का पानी आप पी सकते हैं? No, that is salty. वो salty water होता है that you won't be able to drink. तो ocean means glaciers में जो पानी है वो तो बर्फ है वैसे ही जमा हुआ है, that we cannot utilize. अब सी में जो पानी है वो सॉल्टी है, हम नहीं पी सकते। रिवर में बिकॉज हमने वो इतना पॉल्यूशन कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटी ओनली, वो रिवर्स भी इतनी गंदी हो गई दैट वाटर वी कैन नॉट यूटिलाइज टू ड्रिंक। नाउ कम टू लेक्स। नाउ लेक्स आर प्योर बट लेक में उतना पानी नहीं है दैट इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। अभी हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, ऑल वाटर वाज टेकिंग बाय underground water. These all things were taking underground water. अब underground water क्या होता है,
पानी के का लेवल जो आपकी ज़मीन के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तब ये अंडरग्राउंड वाटर भी एक हेल्दी वाटर है विच वी कैन ड्रिंक। ठीक है, पीने वाला पानी, पोर्टेबल वाटर जिसको बोलते हैं, दैट पोर्टेबल वाटर इज देयर इन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.05%। इतना थोड़ा सा है, इफ यू विल नॉट यूटिलाइज इट प्रॉपरली तो इट विल बी फिनिश्ड वन डे। तो एक दिन ये भी फिनिश हो जाएगा एंड वी विल नॉट रिमेन विद एनी मोर वाटर, हमारे पास बिल्कुल भी पानी बचेगा नहीं। तो व्हाट इज बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, दैट यूटिलाइज water properly without wasting it. And I hope you all have enjoyed the class today, and whatever topic we have done, that is different landform queries or that questions which are related to these landform, that we will do it in our online class. So that's all for today. Good day children, have fun.